Hi students, welcome to Mokopedia, and today we are going to discuss two very important topics of English grammar, nouns and pronouns. So let's move ahead. So let us start with the definition of a noun. Here you can see the definition in the red color. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. The word thing is used to mean anything that we can think of, tangible or intangible. So when we say that noun is the name of an animal, thing, place or object, in object we can consider intangible and tangible things as well. So tangible means one which we can touch. For example, it's a tangible thing, and something which we can only think of. Love, hatred, faith, belief. These are abstract nouns. Okay. So let us move to the types of nouns. There are five types of nouns. Proper noun, the name given to a particular place or animal or place. Particular person or place is known as a proper noun. Next comes, for example, John and England. Next comes common noun, the name given in common to every person or thing of the same class, of the same kind. Example, girl, boy, city, country. So when we say a girl, Sita is also a girl, uh, Jessica is also a girl, Margaret is also a girl. So all these words are common nouns because they can be considered for every person or thing of the same kind. Okay. Next, we move to collective noun, the name given to a collection of people or things to refer to them as a whole. Means, if we talk about a collection of things, that can be called a common noun, called a collective noun. For example, a pack of wolves, a bunch of grapes, a bouquet of flowers, a pack of cards. These all are collective nouns. Next is abstract noun. Abstract noun is usually the name of a quality, action, or state, which is considered apart from the object that it refers to. For example, if we say John is a brave man, so brave is a quality. Obviously, brave is an adjective here, but brave is a quality which can be considered apart from John, which means bravery, honesty, cowardice, beauty, truth. These are qualities which can be considered apart from the person to which it belongs. Clear? Okay. Countable and uncountable nouns. The nouns which can be counted are countable nouns. The nouns which cannot be counted are called uncountable nouns. So, countable means pen, book, chair, men, trees. All these are countable nouns. And that cannot be counted are uncountable nouns. Example, water, sugar, emotion, happiness. So, abstract nouns are also uncountable nouns. Fine. Now let's move ahead and understand the cases in which a noun can lie. So when we say cases, cases means the situation in which a noun is there. For example, when we say John has completed his task, John is the noun here where John behaves differently in this sentence. Objective. The award will be given to Jessica. So Jessica is again a noun which has behaved in a different way in this sentence. And when we say this is Freda's house, so Freda's word is a noun which is behaving in a different way. So let's understand what's the different about this. So when John has completed his task in this sentence, John is the subject of the sentence. When we say objective, the word will be given to Jessica. Jessica is the object of the sentence, so she is behaving like she is lying in the objective case. So John is in the subjective case when we say John has completed his task, and Jessica is in the objective case when we say the award was given to Jessica. And when we say this is Freda's house, the word Freda's is known as a noun in the possessive case because it shows possession. House is the possession she has. Freda's house is known as the possessive case noun. Okay. So we will now discuss genders of nouns. There are four genders of noun: neuter gender, common gender, masculine gender, feminine gender. So let's discuss. Masculine gender nouns are boy, lion, man. Feminine gender nouns are girl, lioness, woman. Neuter gender is watch, book, pen. And when we talk about common genders, they are doctor, student, engineer. So a girl can also be an engineer, a boy can also be an engineer. So doctor, student, and engineer are common gender nouns because
They can be considered both for men and women. Okay. Now let's move ahead. So now we'll discuss with rules related to nouns. So rule number 1, proper nouns are sometimes used as common nouns. Proper nouns are sometimes used as common nouns. For example, if I say Hari is the Sachin of our class, although Sachin is a proper noun, but here it has been used as a common noun. Generally, I told you once, right? I told you like a boy. So boy means John is also a boy, Rahul is also a boy, Rama is also a boy. So in this case, so John, Rahul, and Rama are proper nouns, and the word boy is a common noun. But here I am saying Sachin is the common noun because anybody who plays like Sachin becomes becomes like Sachin. So Hari is of course a proper noun, and sometimes it behaves like Sachin. Okay, which means ओके नेक्स्ट मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मतलब मुंबई जो है वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है यू अंडरस्टैंड मैनचेस्टर इज अ प्रॉपर नाउन लेकिन जब वी कंपेयर इट विथ मुंबई एंड वी सी दैट मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ऑल्दो मैनचेस्टर इज अ प्रॉपर नाउन हियर इट बिहेव्स लाइक अ कॉमन नाउन ठीक है चलो रूल नंबर 2 द मैस्कुलिन जेंडर इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ वायलेंस एंड power okay power so when we say the masculine gender is a word used for objects known for strength power and violence we say that these objects for example the sun casts his beams on poor and rich alike जो सन है सूरज है वो गरीब या अमीर पर इक्वली अपनी रोशनी को भेजता है तब यहाँ पे हम लोगों ने क्या वर्ड यूज किया हिज मतलब वी हैव कंसीडर्ड सन एज अ masculine gender noun similarly death is also represents scary violence strength so death never spares anyone from his clutches यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या यूज किया his यूज किया ओके रूल नंबर 3 the feminine gender is used for objects showing beauty gracefulness and gentleness एग्जाम्पल देखते हैं the moon has hidden her face behind the clouds द अर्थ टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रन अर्थ को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया फेमिनिन मान लिया ठीक है चलो आगे देखते हैं रूल नंबर 4 सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल अलाइक है सिमिलर है एग्जाम्पल स्वाइन शीप डियर एयरक्राफ्ट सैल्मन स्पीशीज सीरीज स्कोर ग्रॉस ये सब ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आएगी बात द शीप वॉज ग्रेजिंग और द शीप वर ग्रेजिंग तो शीप जो वर्ड है वो सिंगुलर शीप के लिए भी है और प्लूरल शीप के लिए भी यूज करेंगे सिमिलरली द सीरीज वॉज अमेजिंग और सेवरल सीरीज ऑफ पीपल वर वेटिंग यहाँ पे सीरीज और शीप को हम लोगों ने कैसे यूज किया हम लोगों ने यूज किया एज अ सिंगल एंड प्लूरल अलाइक ये रूल नंबर 4 था रूल नंबर 5 है सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो केवल प्लूरल में यूज किए जाते हैं पिंसर्स टोंग्स पैंट्स सीजर्स एटसेट्रा सो द पैंट्स वर टॉर्न एंड टैटर्ड मतलब पैंट्स चूंकि पैर में एग्जिस्ट करता है उसे हम प्लूरल मानेंगे सिजर्स भी पैर में होता है दो के पैर में तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं उसे प्लूरल मानते हैं जैसे द सिजर्स वर टू ब्लंट टू कट एनीथिंग यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया वर यूज किया और द पैंट्स वर टॉर्न में भी हम लोगों ने वर यूज किया ठीक है रूल नंबर 6 सम नाउन्स सीम प्लूरल बट आर एक्चुअली सिंगुलर कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखने में हमें प्लूरल लगते हैं बट सिंगुलर होते हैं जैसे मैथमेटिक्स फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स बिलियर्ड्स ड्रॉट्स मीजल्स रिकेट्स न्यूज तो न्यूज आपको देखने में लगता होगा कि ये प्लूरल है लेकिन होता है सिंगुलर सिमिलरली बिलियर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रॉट्स ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल नो न्यूज इज गुड न्यूज और फिजिक्स वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट नो न्यूज इज गुड न्यूज ठीक है समझ में आ गई बात आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 हम लोग अभी नाउन्स के रूल्स कर रहे हैं रूल नंबर 7 क्या कहता है सम कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल एग्जांपल कैटल पुलिस पोल्ट्री वर्मिन पीपल जेंट्री मतलब पीपल ऑफ द रिच क्लास एलीट क्लास
वर्मिन मतलब रॉडेंट्स, जैसे नेवला, चूहा, ये सब हो गया, ये सब वर्मिन में आते हैं। बाकी वर्ड्स का मीनिंग आप समझते हैं। तो कैटल और पुलिस जो ऐसे वर्ड्स हैं, इन्हें हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है। एंड दीज आर collective nouns always used in plural. Example, the cattle were grazing in the field. The police are looking for the fugitive. तो कैटल और पुलिस को या जेंट्री या पीपल को हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर रूल, द कंपाउंड नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस टू द रूट वर्ड। तो कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जैसे सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ये सब होते हैं कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन को अगर प्लूरल करना हो तो उसमें एस वर्ड जो है हम लोग रूट वर्ड में लगाते हैं। रूट वर्ड में कमांडर्स इन चीफ होता है और द ब्रदर्स इन लॉ होता है। सो वी डोंट यूज एस, वी डोंट ऐड एस एट द लास्ट लॉज में, यहाँ पे वी ऐड एस इन द रूट वर्ड इटसेल्फ, ठीक है। ओके, रूल नंबर 9, द possessive case doesn't always denote possession, it also denotes authorship, origin and kind। हमेशा पोजेशन को डिनोट नहीं करता है, ये ऑथरशिप और पोजेशन या काइंड को भी डिनोट करता है, ठीक है, ओरिजिन या काइंड को। तो शेक्सपियर्स प्लेस, मदर्स लव, ये सब भी जो है ये पॉजिटिव केस में डिनोट हो सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 10, द पोजेसिव, याद आपको पोजेसिव केस याद आ रहा होगा, एपोस्ट्रोफी एस वाला है ना। द पोजेसिव केस इज यूज्ड एज एपोस्ट्रोफी एस when the noun is singular but when it is plural only apostrophe is used। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि when we have the noun as singular, तब possessive case में apostrophe s लगाएंगे। plural noun में apostrophe हम लोग केवल s के बाद लगाएंगे, apostrophe s नहीं लगाएंगे। for example, the students work was wonderful, students work was wonderful, the students यहां देख कैसे यूज किया गया है, students s लास्ट में है और ऊपर से apostrophe, एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाया गया। वर्क वाज वंडरफुल। और एक चीज बता दूं आप लोगों को, जब नाउन्स के प्लूरल एस में नहीं एंड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ऑक्स का ऑक्सन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, तब वहां पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एस ऑलरेडी है, वी आर यूजिंग द एपोस्ट्रोफी ओनली, ठीक है। नाउ रूल नंबर 11, व्हेन द नाउन हैज टू मेनी वर्ड्स द एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड ओनली विद द लास्ट वर्ड। अगर नाउन्स में टू मेनी वर्ड्स हैं तो एपोस्ट्रोफी हमेशा लास्ट वर्ड में हम लोग लगाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज विजिट, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। ये हो गया आपके रूल नंबर 11 में। रूल नंबर 12, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड एंड देयर पोजेशन इज सेम। दो नाउन्स कनेक्टेड हैं, एंड से मान लीजिए जुड़े हुए हैं, और उनका पोजेशन, उनका अधिकार की चीज जो भी है वो सेम है, we use apostrophe with the latter one, जो अगला है उसके साथ यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज सलीम एंड मस्तान्स बेकरी। ये जो बेकरी की बात हो रही है, ये दोनों का पोजेशन है, दोनों का एक साथ पोजेशन है, तब हम लोग सलीम एंड मस्तान्स बेकरी यूज कर रहे हैं। वी वेंट टू राहुल एंड रोहित्स हाउस। यहाँ पे एक चीज याद रखने लायक चीज है कि when there are two different people, जैसे मान लीजिए मैं बोलता कि दिस इज सलीम एंड मस्तान्स बेकरी, जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे बोलता कि these are सलीम्स एंड मस्तान्स बेकरीज, तब वो सही हो जाता। क्योंकि अगर हमें दोनों का इंडिविजुअल पोजीशन की बात करनी है, देन वी मस्ट स्पीक अबाउट वन मोर देन वन थिंग, समझ, तभी हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए वी वेंट टू राहुल्स एंड रोहित्स हाउसेस, तब वहां पे हम लोग दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाते। क्योंकि यहाँ पे कॉमन पोजेशन है, वी कैन यूज ओनली एपोस्ट्रोफी विद द लैटर वन, ठीक है। रूल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। द पोजेसिव केस इज यूज्ड विद ओनली लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के साथ ही यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, द बुक्स कवर इज रेड, ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या होगा, द कवर ऑफ द बुक इज रेड, ठीक है। द टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, गलत है, द लेग्स ऑफ द टेबल आर ब्रोकन, ऐसे करेंगे सही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 14, व्हेन थिंग्स आर पर्सोनिफाइड वी कैन यूज पोजेसिव केस। लेकिन जब थिंग्स पर्सोनिफाई होते हैं, जैसे नेचर्स लॉज आर स्ट्रेंज, ही इज फॉर्चून्स फेवरेट, जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तब वहां पे पॉजिटिव केस यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 15 नंबर रूल, पॉजिटिव केस इज आल्सो यूज्ड विद एंटिटीज डिनोटिंग टाइम, स्पेस एंड वेट। तो कभी भी एंटिटीज जो टाइम, स्पेस और वेट को डिनोट करते हैं
उनके साथ हम लोग पोजेसिव केस यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, I'll take a week's time to complete the project। यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे I'll take the time of a week to complete the project। यहाँ क्या कहेंगे, I'll take a week's time to complete the project। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, the ruler has a foot's length। फुट्स लेंथ होगा मतलब इस रूलर का 1 फुट का लेंथ है, एक फुट का लेंथ है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, फुट्स लेंथ। यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे दिस रूलर हैज द लेंथ ऑफ अ फुट, वैसा नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, दिस पैकेज हैज अ पाउंड्स वेट, 1 पाउंड का पैकेट है, ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 16 में, इफ द सेम नाउन इज रिपीटेड आफ्टर एंड बिफोर अ प्रेपोजिशन द नाउन विल बी सिंगुलर। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, टाउन आफ्टर टाउन, एक नाउन है और सेम नाउन यहां पर भी यूज हुआ है और ये है आपका प्रेपोजिशन, तब दोनों सिंगुलर में होंगे। कभी हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे टाउन्स आफ्टर टाउन्स या रोज अपॉन रोज, ऐसा नहीं कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, ही रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बुक, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़े और आपको बता दूं कि नाउन चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट रूल्स थे हम लोगों ने कर लिया, जो रूल्स इंपॉर्टेंट था सारा कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। नाउ विल मूव टू द चैप्टर प्रोनाउंस एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर। चलिए, द प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। सिंपल डेफिनेशन याद रखना है कि नाउन, प्रोनाउन जो है एक वर्ड है यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं, चलिए। पहला है पर्सनल प्रोनाउंस, आई, मी, माई, ही, शी, हिम, हिज, हर, हर्स, देयर, देम, इट। देखिए, जो प्रोनाउंस पर्सन्स के लिए यूज होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। याद रखने लायक चीज है। अभी अभी इसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में इसके आगे, फिर मैं अभी बता दूं आपको। फिर आता है रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ। जब भी प्रोनाउन में हम लोग जो पोजेसिव केस के प्रोनाउंस हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस, उसमें सेल्फ लगा देते, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, SELF लग जाता है, तब वो बन जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके यूज डिफरेंट है, मैं बताया तो अभी आपको। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोज, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। ओके, इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब जो किसी के लिए और सबके लिए यूज किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। वन, समवन, नन, दे, ऑल, फ्यू, मेनी, वी, ये सब क्या है, दीज आर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नाउ विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ईच, ईदर और नीदर, ये तीनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एग्जांपल से समझेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है, हु, विच और दैट। दीज आर बेसिकली आल्सो कॉल्ड कंजंक्टिव प्रोनाउंस, जो कि सेंटेंस में दो क्लॉजेस को या दो अलग अलग सेंटेंसेस को ऐड करते हैं, इसे हम कहते हैं कंजंक्टिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन। ये ऐड करने के काम आता है सेंटेंस। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, हु, हुज, विच, व्हाट। ये क्या होते हैं, इसे ये क्वेश्चन वाले टर्म्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग एक एक करके सभी प्रोनाउंस के एग्जांपल्स। तो यहां देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आ रहा है, मैंने बोला था अभी आपसे, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, ये सभी आते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस। ये इतने दूर वाले सिंगुलर हैं, ये इतने दूर वाले प्लूरल हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पर्सन, पहली बात आपको बता दूं, फर्स्ट पर्सन वो प्रोनाउन है जो बोल रहा है। सो आई एम द फर्स्ट पर्सन, और मान लीजिए दो तीन लोग खड़े हैं, वी आर द फर्स्ट पर्सन। जो बोल रहा है, वन हु इज स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ओके, सेकेंड पर्सन, यू, योर, योर्स। तो मैंने यू क्यों दो बार लिखा, एक बार यू सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल जॉन का दिया था, जॉन हैज कंप्लीटेड द टास्क, वो वाला। एक बार यू सब्जेक्ट और एक बार यू ऑब्जेक्ट। द अवार्ड हैज बीन गिवन टू जेसिका, द अवार्ड हैज बीन गिवन टू यू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यू, तो दो हो गए यू, और एक हो गया योर और एक हो गया योर्स। योर हो गया पॉजिटिव केस का प्रोनाउन और योर्स भी वही हुआ सेम। बेसिकली देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जब मैं माई और माइन बोलता हूं तो माई जो वर्ड है वो पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव है और माइन है पॉजिटिव केस का प्रोनाउन, बट हम एक ही में कंसिडर करके वी कैन राइट बोथ ऑफ देम इन वन कैटेगरी, प्रोनाउंस में ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो अब आते हैं थर्ड पर्सन में, ही, शी, हिम, हर, हिज, हर्स, इट। ये सब आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। अब आप कहेंगे इट क्यों आ गया पर्सनल प्रोनाउन में, ये तो मैंने बोला पर्सनल प्रोनाउंस है। पर्सनल मतलब पर्सन्स के लिए, लोगों के लिए यूज किया जाने वाला। सो इट यहाँ पे इसलिए आया, कभी कभी हम लोग इट लोगों को दर्शाने के लिए भी यूज करते हैं, वी कैन यूज इट फॉर
denoting people as well. For example, it is I who have completed the task, it is John who has made the mistake. इस तरह से तो it को John को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। उस तरह से it भी आ गया पर्सनल प्रोनाउन में। they, their, them, theirs ये भी आ गया पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन के प्लूरल कैटेगरी के प्रोनाउन से हैं, ठीक है। यह थर्ड पर्सन के सिंगुलर कैटेगरी के प्रोनाउन, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। और सेकंड पर्सन में दोनों सेम होता है, ठीक है। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ। तो व्हेन द डूअर डज एन एक्शन दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन हिमसेल्फ, डूअर जब एक्शन करता है जो कि खुद उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, मतलब रिसीवर और डूअर सेम रहेंगे, तब वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। एग्जांपल देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल ड्राइविंग। तो आई और माई सेल्फ एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है, एक ही पर्सन को। डूअर और रिसीवर एक्शन के एक दोनों सेम पर्सन है। ही कट हिमसेल्फ वाइल शेविंग, ही और हिमसेल्फ कट के माध्यम से दोनों एक को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम्स एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन द डूअर डज समथिंग ऑन हिज ओन, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे ही डिड इट हिमसेल्फ, शी विल टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। यहाँ पे उसने वह काम स्वयं किया। स्वयं या खुद के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है? वो होता है रिलेटिव एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, शी विल टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, शी विल टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। यहाँ पे हरसेल्फ जो हो गया, यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब व्हेन द एक्शन रिफ्लेक्ट्स ऑन द सेम पर्सन हु इज द डूअर, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। और ये रिफ्लेक्शन जैसा है समझने के लिए। और एम्फेटिक मतलब व्हेन, जब हम लोग बात करते हैं स्वयं या खुद के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब किसी चीज को पॉइंट आउट करना। जैसे दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक। दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक। दीज आर आर हाउसेस, दोज आर आर बुक्स। तो सामने की चीज के लिए दिस और दीज, दूर की चीजों के लिए दैट और दोज, याद रखने लायक चीज है। इनडेफिनिट प्रोनाउन वन, समवन, नन, दे, ऑल, फ्यू, मेनी, वी, ये सभी क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। या किसी, ये किसी के लिए और सबके लिए यूज हो सकते हैं। इसमें क्लैरिटी नहीं रहती है कि किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड डू वंस ड्यूटी। ये देखिए वन से स्टार्ट हुआ है और वंस सेंटेंस में आगे भी आया है। ये क्या है? ये है इनडेफिनिट प्रोनाउन जो किसी एक व्यक्ति के लिए और सभी के लिए कहा जाता है। जैसे ऑल ऑफ द पीपल मस्ट बी लॉयल टू देयर कंट्री, ये सभी के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, ईदर और नीदर। एग्जांपल देखते हैं। ईदर ऑफ द बुक्स इज सूटेबल टू रीड, दोनों में से कोई एक बुक सूटेबल है पढ़ने के लिए। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज रेस्पॉन्सिबल, दोनों में से कोई भी भाई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ईदर और नीदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोनों में डिफरेंटली पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करने के लिए होता है। देख लीजिए एग्जांपल, ही इज द मैन हु हेल्प्ड मी आउट। इसका एग्जांपल ये कैसे ऐड हुआ होगा? ही इज द मैन फुल स्टॉप, ही हेल्प्ड मी आउट, तब यहाँ पे हम लोगों ने हु लगा दिया। जैसे शी इज द बेस्ट एडवाइजर दैट कैन गाइड यू। तो यहाँ पे देखिए दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जैसा लगा है, यहाँ पे ये ऐड कर रहा है। शी इज द बेस्ट एडवाइजर, शी कैन गाइड यू को ऐसे हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है। द बुक विच यू गेव मी इज लॉस्ट, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे विच, जो हो गया यहाँ पे ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हु, विच, हुज, व्हाट। एग्जांपल देखिए, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। तो आप सोचते होंगे कि ब्रदर के लिए विच क्यों लगाया हम लोगों ने। ऐसा ये रूल है ये कि जब सिलेक्शन की बात हो किसी एक ग्रुप में से, तब वहां पे हु नहीं लगाते, वहां पे विच लगाते हैं, ठीक है। तब विच इज योर ब्रदर। तो आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे प्रोनाउंस कैसे हुए? प्रोनाउंस इसलिए हुए बिकॉज दे आर रिप्लेसिंग द नाउन। फॉर एग्जाम्पल, हु हैज गिवन यू दिस प्रोजेक्ट, तो हु उस पर्सन के लिए यूज हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे हु को हम लोग मानेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द हेल्प यू नीड, मतलब कौन सा हेल्प तुम चाहते हो। तो वो कौन सा वर्ड जो है वो नाउन जो है उसे रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? व्हाट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रूल्स रिलेटेड टू प्रोनाउंस, ठीक है। चलिए देखते हैं। इफ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स comprising the whole,
द प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी ऑफ द प्लूरल नंबर। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए द टीम विल गिव इट्स डिसीजन सून, तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टीम के साथ हम लोगों ने इट या इट्स यूज किया, ठीक है। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन के इंडिविजुअल्स जो मेंबर्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं अपने ओपिनियन में, या उनका डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन। प्लूरल नंबर का प्रोनाउन एग्जांपल देखिए, द कमिटी, ये कलेक्टिव नाउन हो गया, द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो हम लोगों ने क्या बोला, कलेक्टिव नाउन के साथ वो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन रिप्रेजेंट करता है, बट हियर वी आर यूजिंग अ प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। आगे देखिए, द जूरी वर बिजी इन डिस्कसिंग देयर वर्डिक्ट व्हाइल सिटिंग ऑन देयर सीट्स। जूरी क्या है, यहाँ पे प्लूरल का कलेक्टिव नाउन है, जिसे प्लूरल के सेंस में यूज किया गया है, बिकॉज वहां पे वो वर्डिक्ट को डिस्कस कर रहे थे सिटिंग ऑन देयर सीट्स। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है, तो सबके अलग अलग होने की बात हो रही है, तब यहाँ पे देयर और देयर यूज किया गया, ठीक है। रूल नंबर 2 देखते हैं, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच अदर। दो प्रोनाउंस हैं, दो सिंगुलर नाउन्स हैं, अगर वो एंड से जुड़े, बाय एंड से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पहले, उन सभी के पहले एवरी लगा हुआ है, तब हम लोग प्रोनाउन को सिंगुलर ही मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर। यहाँ पे सेलर और सोल्जर को एंड से जोड़ा गया और दोनों के पहले एवरी लगा दिया गया, तो प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, सिंगुलर प्रोनाउन हिज। वो डिपेंड करेगा कौन सा जेंडर का है, यहाँ पे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन यूज किया, क्योंकि सेलर और सोल्जर को हम लोगों ने मैस्कुलिन इमेजिन किया, ठीक है, तब वहां पे हिज लगेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय और ईदर और नीदर नॉर। अगर दो सिंगुलर प्रोनाउंस जॉइंड हुए हैं और से, ईदर और से और नीदर नॉर से, द प्रोनाउन इज जनरली सिंगुलर। एग्जांपल देखिए, रमा और हरी मस्ट लेंड हिज हैंड। ईदर सीता और अमीना फॉरगॉट टू टेक हर पैरासॉल। यहाँ पे हिज लगा था क्योंकि यहाँ पे रामा और हरी में से एक की बात हो रही थी। इधर सीता और अमीना दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। फॉरगॉट टू टेक हर पैरासॉल। पैरासॉल मतलब छतरी होता है, मतलब छोटी सी छतरी जो आपको धूप से बचाती है, उसे पैरासॉल कहते हैं। नीदर अब्दुल नॉर करीम हैज डन हिज लेसन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ना तो अब्दुल ने ना तो करीम ने अपना अपना खुद का लेसन बनाया। तो हिज यहाँ पे अपना, मतलब उनके थर्ड पर्सन के पॉजेसिव केस की बात हो रही है, तब यहाँ पे हिज सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 4, व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय और एंड नॉर। अगर दो प्लूरल नाउन्स हैं, दो नाउन्स हैं, एक प्लूरल या एक सिंगुलर है, और वो ज्वाइन हुए हैं और या नॉर से, द प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल। एग्जांपल, ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। तो एक अगर प्लूरल रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, उससे प्लूरल प्रोनाउन देंगे। विल यूज अ प्लूरल प्रोनाउन फॉर दैट कॉम्बिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, व्हेन अ प्रोनाउन रेफर्स टू मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्संस, इट मस्ट बी ऑफ द फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द थर्ड। इसका मतलब समझाता हूं, फिर से पढ़ूंगा। व्हेन अ प्रोनाउन रेफर्स टू मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन in different persons, it must be of the first person plural in preference to the third। यहां पे देखिए, you and I दो तरह के प्रोनाउंस यूज हुए हैं। इसमें छोटा कौन सा हुआ, आई हुआ। आई को मैं फर्स्ट पर्सन मानता हूं, तो वन फर्स्ट मतलब छोटा हो गया। यू सेकंड पर्सन का है, छोटा कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का। तब छोटे वाले का जो प्लूरल होगा वो यूज हो जाएगा यहाँ पे। तब आई का प्लूरल क्या होता है, वी होता है। वी का पॉजिटिव केस आर होता है, ओ यू आर। तब यहाँ पे हम लोगों ने आर लगा दिया। यू एंड आई हैव डन आर ड्यूटी। अब यू एंड हरी में देखिए, हरी में हम लोग कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, हरी है थर्ड पर्सन। तो यू क्या है आपका, छोटा है, सेकेंड पर्सन का है। तब हम लोग क्या करेंगे, यू का प्लूरल लगाएंगे योर, यू का पॉजिटिव केस लगाएंगे योर। ये समझने लायक चीज है। नाउ आगे हम लोग समझते हैं रूल्स रिलेटेड टू प्रोनाउंस में 2-3-1 रूल। 2-3-1 रूल, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ गुड मैनर रूल। देखिए, गुड मैनर्स रिक्वायर अस दैट वी शुड से 3-2-1। तो मान लीजिए यहाँ पे राहुल खड़ा है, मैं राहुल से कहता हूं, राहुल, यू, आई एंड यू मस्ट गो टू द सिनेमा। तो ये सही ऑफरिंग नहीं हुई।
क्योंकि अगर आप किसी को पोलाइटली कहते हैं कि तुम्हें और मुझे सिनेमा चलना चाहिए, तब द सेकेंड पर्सन इज द पर्सन दैट इज स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं। तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यू को पहले रखेंगे और आई को लास्ट में रखेंगे। तब यू एंड आई यहां पे सही हो गया, आई एंड यू गलत हो गया। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो गया, तब यू एंड ही एंड नॉट ही एंड यू। इससे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दीज आर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउंस। समझ में आ रही बात? जैसे हरी एंड आई, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, नॉट आई एंड हरी, ही एंड आई नॉट आई एंड ही, इस तरह से। एग्जाम्पल देखिए, यू एंड आई मस्ट वर्क टूगेदर, ये गुड मैनर रूल कहलाता है। यू एंड ही मस्ट मेंड योर वेज, ये होता है 3-2-1 रूल के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, एक मिनट रुकिए, यहां पे आएगा 2-3-1 रूल। 2-3-1 रूल मतलब सेकेंड पर्सन को पहले रखना है, 2-3-1 रूल। फिर आता है थर्ड पर्सन, फिर लास्ट में हम लोग खुद को रखते हैं, यू ही एंड आई, सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट, फर्स्ट लास्ट में रहेगा। ठीक है, बट व्हेन वी मेक अ कन्फेशन द रूल इज 1-2-3। ये सिंपल समझने लायक चीज है कि जब आपने कोई गलती किया है कमिट और उसे कन्फेस कर रहे हैं, तब आप क्या लिखेंगे उसमें, 1-2-3 रूल लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई यू एंड ही हैव स्टोलन द नेकलेस, पहले अपने आप को रखेंगे, सेकेंड पर्सन को दूसरे पे रखेंगे, थर्ड पर्सन को लास्ट में रखेंगे। बट यहाँ पे कौन सा रूल था, 2-3-1 रूल, सेकेंड पर्सन को पहले, थर्ड पर्सन को सेकेंड में, अपने आप को लास्ट में। जैसे आई एंड ही मस्ट बी ब्लेम्ड, यहाँ पे 1 और 3 एक साथ आ रहा है, रूल कौन सा है, 1-2-3 रूल। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, व्हेन द प्रोनाउन फॉलोज अ प्रेपोजिशन इट मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। अगर नाउन प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। बट व्हेन इट फॉलोज अ कंजंक्शन इट मस्ट बी इन द सब्जेक्टिव केस। तो अगर आपका प्रोनाउन जो है वो प्रेपोजिशन के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, बट इफ इट फॉलोज अ कंजंक्शन इट मस्ट बी इन द सब्जेक्टिव केस। एग्जांपल देखिए, देयर इज अ ग्रेट केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड मी। मी क्यों आया यहाँ पे, मी आपका यहाँ पे ही क्यों नहीं आया या आई क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे प्रेपोजिशन बिटवीन लगा हुआ है। तो अगर हम ऐसा नहीं कह सकते हैं देयर इज अ ग्रेट केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड आई या ही एंड आई, ऐसा नहीं कह सकते हैं, हिम एंड मी कहेंगे। ठीक है, या मी यू एंड मी कहेंगे। उसी तरह से नन बट ही विल हेल्प अस, यहाँ पे बट क्या है, कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के बाद क्या यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्योंकि कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। Okay, rule number 8, when we talk about two people we use each other, for more than two people we use one another। देखिए बेसिकली ये दो प्रोनाउंस जो कहलाते हैं, ये होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल मतलब जब एक दूसरे को रेसिप्रोकेट किया जाता है, रेस्पॉन्स दिया जाता है। एग्जांपल देखिए, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हेल्प वन अनदर, द टू स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर। दो लोगों के लिए ईच अदर लगाते हैं और दो से ज्यादा लोगों के लिए हम लोग वन अनदर लगाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9, वी डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू स्टार्ट अ सेंटेंस या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कभी नहीं। जैसे बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि माई सेल्फ राहुल कुमार फ्रॉम चंडीगढ़, ऐसा नहीं करते हम लोग क्या लिखते हैं, आई एम राहुल कुमार और माई नेम इज राहुल कुमार एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, माई सेल्फ राहुल कुमार फ्रॉम चंडीगढ़ गलत है, आई एम राहुल कुमार फ्रॉम चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रूल नंबर 10, when a sentence starts with an indefinite pronoun, the entire sentence has the same indefinite pronoun। Example देखिए, one should do one's work properly, someone must come to give his her suggestion। तो यहाँ पे one से start हुआ, indefinite pronoun one है, और end हुआ once से ही, मतलब indefinite pronoun जिससे start होगा उसके बाद pronoun को change नहीं कर सकते। For example, one should do his duty, his work properly नहीं हो सकता है, वहां पे क्या होगा, वन शुड डू वंस वर्क प्रॉपर्ली ही होगा। ठीक है, समवन मस्ट कम टू गिव हिज हर सजेशन में यहाँ पे समवन मतलब समवन के लिए हम लोग ही और हिज ही यूज करेंगे, हर या हिज ही यूज करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 11, द रिलेटिव प्रोनाउन विच हैज नो जेनेटिव केस सो वी यूज हुज इन इट्स प्लेस। देखिए जेनेटिव केस मतलब प्रेपोजिशन के साथ लगना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से A triangle in which three sides are equal is called an equilateral triangle। In which को कहते हैं हम लोग जेनेटिव केस, जो कि यहाँ पे सुटेबल नहीं होता है। Although whose जो वर्ड है it is used for people and living things, but कभी कभी हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये अलाउड है।
तो द ट्राइंगल whose 3 sides are equal is called an equilateral triangle. तो whose को वहां पे in which की जगह पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 12, द रिलेटिव प्रोनाउन who is used only for persons but sometimes for personified animals. तो who जो वर्ड है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसे जनरली पीपल के लिए, पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, मेन के लिए, वुमेन के लिए, बट कभी कभी उनके लिए भी यूज करते हैं एनिमल्स के लिए जो पर्सोनिफाई किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, हिज डॉग हु ही लव्स टू मच इज सिक। इस तरह से हम लोग हु को यूज करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 13, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड विद एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। मतलब अगर आपका एडजेक्टिव सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री आया है स्टार्टिंग में, तो उसको फॉलो करेगा दैट, विच और हु नहीं फॉलो करेगा। एग्जाम्पल देखिए, द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। जो अभी तक का वाइजेस्ट मैन रहा होगा उसने बहुत सारी गलतियां की होंगी, इसका ये मतलब है। सो द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। तो दैट किसके बाद फॉलो किया? वाइजेस्ट के बाद। वाइजेस्ट कौन सा एडजेक्टिव है? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, सबसे समझदार। ओके। रूल नंबर 14, आफ्टर द वर्ड्स ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली। ये जो वर्ड्स हैं ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग एंड द ओनली, इनके बाद भी दैट फॉलो करता है। तो क्या कंसिडरेशन है? देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर कंफ्यूज्ड अमंग दैट, हु और विच। उस केस में मैं बता रहा हूं कि क्या क्या वर्ड्स के बाद दैट यू फॉलो होता है, तो आपका लाइफ इजियर हो जाएगा। तो ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग के बाद द ओनली के बाद दैट फॉलो करता है। सेंटेंस देखिए, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, ही इज द सेम मैन दैट ही हैज बीन। यहां पे देखिए, द सेम के बाद दैट लगा, ऑल के बाद दैट लगा, ही इट इज ओनली डोंकीज दैट ब्रे, तो यहां पे ओनली के बाद दैट लगा, ठीक है। ओके। 15, the verb following a relative pronoun is according to the antecedent that precedes it. तो जो आपका relative pronoun who यहां पे लिखा हुआ है, उसके बाद जो verb follow करेगा, उसके बाद जो verb follow करेगा, मतलब who के बाद verb follow कर रहा है, who के बाद visits follow करेगा, that will depend on the antecedent. antecedent मतलब who के पहले जो आया है, who के पहले जो आया है। जैसे यहां पे देखिए, the children who were present got chocolates, और उसके बाद द मैन हु विजिट्स लाइब्रेरीज विल बिकम अ बुकवॉर्म। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट मैन है, चिल्ड्रन एंटीसीडेंट, तो हु के बाद जो भी वर्ब लाई करेगा वो दैट विल डिपेंड ऑन द एंटीसीडेंट, नथिंग एल्स। रूल नंबर 16, द वर्ड बोथ इज इन फॉलोड बाय अ नेगेटिव वर्ड लाइक नॉट। जो वर्ड बोथ है वो नेगेटिव वर्ड से फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल देखिए, बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो, ये गलत सेंटेंस है क्योंकि बोथ के बाद क्या लिखा हुआ है? डिड नॉट, ये तो गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीदर ऑफ देम वेंट, दोनों में से कोई नहीं गया, नीदर ऑफ देम वेंट। रूल नंबर 17 देखते हैं, द वर्ड एल्स और समवन एल्स इज यूज्ड विद पोजेसिव केस टू डिनोट पोजेशन। कभी कभी क्या होता है, पोजेशन डिनोट करने के लिए हम लोग को एल्स और समवन एल्स को यूज करना पड़ता है, जिसके बाद पोजेसिव केस लगता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस हाउस इज नॉट माइन बट समवन एल्स। अगर आप ऐसा यूज करते हो वो गलत होता है। दिस हाउस इज नॉट माइन बट समवन एल्सेस, ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 18 देखते हैं, द एक्सप्रेशंस वन ऑफ द, सम ऑफ द, नन ऑफ द, फ्यू ऑफ द, ऑल ऑफ द expressions one of the, some of the, none of the, few of the, all of the are followed by plural noun. इनके बाद plural noun ही आता है। So he is one of the best musicians, plural noun, who we have in the industry. Best musicians we have in the industry. This book is among some of the best pieces of literature. देखिए, best pieces आ गया, इसकी plural आ गया, तो one of the, few of the, some of the, none of the के बाद plural noun आता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोगों ने नाउन्स एंड प्रोनाउंस के सबसे क्रूशियल रूल्स किए हैं। आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू सो मच।